minus of t ut minus e raised to power 2t u of minus t. You have to determine the Laplace transform of this signal. So first we have the formula of Laplace transform, that is x of s is the Laplace transform. If we have to find the Laplace transform of x of t, it is minus infinity to infinity x of t e raised to power minus st into dt. This is the formula to calculate the Laplace transform. Now substitute this xt in this formula. You will get minus infinity to infinity e raised to power minus 2t ut minus of e raised to power 2t u of minus t into e raised to power minus st dt. Just separate it. It is minus infinity to infinity e raised to power minus 2t ut e raised to power minus st dt. Here you have minus, so we can also write it as plus of minus of e raised to power 2t u of minus t e raised to power minus st dt minus infinity to infinity. Now as can you tell me what is the Laplace transform of this? It is in the form of e raised to power at ut. Yesterday we have discussed this thing, that if the signal is in the form of e raised to power at ut, then what is the Laplace transform of that? e raised to power अगर minus at है तो उसका Laplace transform क्या होता है? आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हो कि अगर आपको ऐसा सिग्नल गिवन है तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द Laplace transform, if it is in the form of e raised to power minus at ut, then its Laplace transform is 1 upon s plus a. अगर यहाँ माइनस है then you will get s plus a. अगर आपका ऐसा है e raised to power at u of t, then it is 1 upon s minus a. You can also solve it, there is no problem, you can try it. like limits आपकी कहाँ से हो जाएंगी? ये 0 से infinity. why? because जो ut है it is defined only for t equal to 0 or greater than 0. so आपकी जो limits आएंगी वो 0 से infinity आएंगी, e raised to power minus 2t e raised to power minus st dt. then आप इसे combine कर सकते हो minus s plus 2 t dt 0 to infinity. देन इसकी इंटीग्रेशन करो, सॉल्व करो तो आपका यही आएगा एट द एंड. सो ये जो आपका सिग्नल है ये आपका आगे भी बहुत जगह यूज होगा. सो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस थिंग दैट if signal is e raised to power at ut, if it is in this form, then its Laplace transform is 1 upon s minus a. If the coefficient of t is positive, then you will get minus in the denominator. But if the coefficient of this t is negative, then you will use plus sign in the denominator, 1 upon s plus a. So इसे याद ही रख लो because ये आगे यूज होगा और आपकी कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाएंगी. Now in this case, what is the Laplace transform of this e raised to power minus 2t ut? What is the Laplace transform of this? Can you tell me? e raised to power minus 2t ut का Laplace transform क्या होगा? मैम 1 by s minus 2. बच्चे it is e raised to power minus 2t है. So I have told you कि अगर t का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा. मैम s अगर plus 2
यस, अगर ये कॉफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में आपका माइनस आएगा। तो आप ये दो चीजें याद रख सकते हो, अदरवाइज यू कैन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट, बट इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। सो यू कैन डायरेक्टली learn these two formulas, that if it is in the form of e raised to power at ut तो उसका Laplace transform 1 upon s minus a है। So same it is in this form, e raised to power minus at ut, तो इसका Laplace transform 1 upon s plus a लिखते थे, बट a यहाँ आपका क्या है, a is minus 2 2। मैम, यस, माइनस 2। यस, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 1 upon s plus 2, इसका Laplace transform। Now can you tell me the Laplace transform of this? I'm writing it again. The Laplace transform of the second term, that is minus of e raised to power 2t u of minus t e raised to power minus st dt, minus infinity to infinity. So tell me the Laplace transform of this. आपका ये मैम वन यस यस, मैम 1/s+2। बच्चे इट इज नॉट 1 upon मैम s 1 plus 2, s s माइनस 2 मैम। minus 2। आपने ये नेगेटिव साइन नहीं देखना, ये तो आपका फॉर्मूले में साइन था नेगेटिव साइन, ये जो आपको क्वेश्चन गिवन था वहां था ये नेगेटिव साइन। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि आपको सिग्नल कैसा गिवन है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, यस, इज देयर एनी डाउट? नो मैम। I think someone raised the hand. Then it is e raised to power at ut, it is in this form, e raised to power at ut, तो इसका होता है Laplace transform 1 upon s minus a, so it is 1 upon s minus 2। तो इस टर्म का Laplace transform भी आ गया, और जो इससे पहले आपकी टर्म थी उसका Laplace transform क्या आया, जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, e raised to power minus 2t ut e raised to power minus st dt plus this, इसका Laplace transform आ गया था 1 upon s plus 2। सो हम इसे फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, 1 upon s plus 2 माइनस, ये माइनस साइन था, आप इसे यहीं रहने दो, माइनस 1 upon s minus 2 इज इक्वल टू x ऑफ s। ये आ गया आपका, दिस इज द Laplace transform ऑफ अ गिवन सिग्नल, जो आपको सिग्नल गिवन था उसका ये Laplace transform आ गया। नाउ आवर सेकंड पर्पस इज टू प्लॉट द ROC। After calculating the Laplace transform, the second purpose is to calculate the ROC. So you will separately find the ROC for both the signals. ROC में आप क्या करते हो, you will take the S plane, this is sigma, S is equal to sigma plus j omega होता है। तो आपके पोल्स कहाँ कहाँ आएंगे, इस एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, पोल्स। पोल्स मीन्स आपका डिनोमिनेटर किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, यही चीज हम आरओसी के ऊपर प्लॉट करते थे कि आपका डिनोमिनेटर किस किस वैल्यूज के लिए जीरो हो रहा है। सो इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी कि आपका ये जीरो हो जाए, दैट इज द पोल। -2 मैम। मीन्स आपके इस के पोल्स कौन कौन से हैं, वन इज -2 एंड द सेकेंड पोल इज 2 मैम। +2। यस 2, दीज आर द पोल्स। तो ये दोनों पोल्स हम कहाँ प्लॉट करते हैं, ऑन दिस, एक आपका -2 आ गया और एक आपका 2 आ गया। सो ये हम ऐसे ही प्लॉट करते थे जब हमने आरओसी प्लॉट करनी होती थी। आरओसी प्लॉट करने के लिए हम सिग्मा एस प्लेन में क्या करते हैं, दोनों पोल्स क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं किस वैल्यू के लिए आपका डिनोमिनेटर जीरो है। और जो आपका आरओसी होता है, इट डज नॉट इंक्लूड दीज पोल्स। आरओसी ये पोल्स इंक्लूड नहीं करता कि आपने जो आरओसी का जब लिखना है कि एस और ए के बीच होता था आपका कंपैरिजन, तो आपने इक्वल टू साइन नहीं डालना, या तो ये आरओसी ग्रेटर होगा या लेस होगा। अगर आपने इक्वल टू साइन डाल दिया, इट मीन्स आरओसी -2 पे भी डिफाइंड है
और अगर यहाँ -2 लिखोगे तो इट इज 1/0 आ जाएगा, एंड 1/0 इज इंफिनिटी। इट मीन्स जो ROC है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, फाइनाइट। सो ROC पूरी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट -2 फॉर दिस एंड एक्सेप्ट 2 फॉर दिस। मीन्स -2 के लिए आपका जो ROC है वो नहीं डिफाइंड, कि अगर आपने -2 ले लिया तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, एंड ROC आपकी क्या आनी चाहिए, हमेशा फाइनाइट। सो कैन यू टेल मी इन दिस केस ये किस सिग्नल की ROC आई है आपकी? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, ये चीज गिवन थी आपको क्वेश्चन में, x ऑफ t इज इक्वल टू e⁻⁻ -2t ut, यही गिवन था आपको क्वेश्चन में। एंड सेकंड था आपको -e⁻²t u ऑफ -t। दिस थिंग इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म था दैट इज 1/s+2, एंड इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म था दैट इज 1/s-2। सो अगर हमें इसकी ROC लिखनी है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन s, मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको e⁻⁸ ut हो तो इसमें जो कंपैरिजन होता है आपका s एंड कोफिशिएंट ऑफ t के बीच होता है। t का कोफिशिएंट क्या है? 2 मैम। 2 मैम। इन दिस केस इट इज 2, अदरवाइज अगर इस फॉर्म में है तो s और a के बीच होता है। हेयर द कोफिशिएंट ऑफ इज t इज नॉट 2, इट इज -2। अगर ये -2 है तो आपने -2 ही लेना है। ये इस पार्ट के लिए हम कर रहे हैं, और इस पार्ट के लिए किस किस के बीच कंपैरिजन होगा, s एंड +2 मैम। SN2। नाउ हमने डिसाइड करना है कि इसमें ग्रेटर देन साइन आएगा या लेस देन साइन आएगा। और ग्रेटर देन साइन या लेस देन साइन हम कैसे डिसाइड करते थे कि अगर आपका सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है तब तो आपका ग्रेटर देन साइन आता है, अगर आपका सिग्नल लेफ्ट साइडेड है देन आपका लेस देन साइन आता है। अब वो हम कहाँ से चेक करेंगे, इट इज e⁻⁻2t ut। अब ut को अगर प्लॉट करोगे इस केस में वो आपका ऐसे आएगा, राइट साइड, इस साइड ये आ रहा है आपका, राइट साइड ऑन दिस ग्रेट, इस साइड आ रहा है आपका। इट मींस इसमें दिस सिग्नल इज योर राइट साइडेड, तो इसमें s ग्रेटर देन -2 आएगा। बट फॉर दिस कैन यू टेल मी वेदर दिस सिग्नल इज अ राइट साइडेड और अ लेफ्ट साइडेड? लेफ्ट साइड में। इट इज u ऑफ -t। ये हमने ut प्लॉट किया है, u ऑफ -t क्या होगा, इसका रिवर्स, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इट मींस ये आपका लेफ्ट साइडेड है। इफ इट इज लेफ्ट साइडेड तो इसमें जो साइन आएगा वो आपका कौन सा आ जाएगा, लेस देन। ये लेस देन साइन है और इसमें ग्रेटर देन साइन। तो हमने दोनों की ROC डिफाइन कर दी। अगर आपको अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स की थी आपने सिर्फ उसमें एक ही सिग्नल की ROC डिफाइन की थी, कि आपको जैसे e⁻⁻2t ut गिवन है, आपने इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किया और उसकी ROC बता दी। बट अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो कि आपको ये सम की फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है, दो सिग्नल्स, तो आप दोनों के सेपरेटली लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे। लाइक इसका भी सेपरेटली हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया और इसका भी, देन हमें दोनों की इंडिविजुअली ROC फाइंड आउट की कि इसके लिए ROC क्या है एंड इसके लिए ROC क्या है। अब हमें पता है कि अगर e⁻⁻2t ut के लिए ROC है, इट इज s ग्रेटर देन -2, तो ग्राफ पे ये s ग्रेटर देन -2 यही आएगा। एंड फॉर द अदर सिग्नल इट इज s लेस देन 2, तो ये 2 हमने यहां लिखा था, तो ये वाला सारा, इट मीन्स ये वाला पोर्शन आपका किस में आया, दिस इज द ROC फॉर द कंप्लीट सिग्नल। ये कंप्लीट between -2 and 2 you have an ROC of this signal, region of convergence. Is it clear? यस मैम। और इसे आप अगर हमने ऐसे लिखा है s greater than -2 and s less than 2, you can also write it like this कि s है जो
ग्रेटर देन -2 है बट लेस देन 2, आप इसे कंबाइन करके भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इंडिविजुअली. क्लियर? सो इन दिस वे यू विल सॉल्व द Laplace transform and then you can plot the ROC. Now next we have few properties of Laplace transform, and जो आपकी Laplace transform की properties हैं they are almost identical to the properties of Fourier transform. So मैं आपको proof नहीं करा रही, proof you can do on your own because ये सेम ही है जैसे हमने Fourier transform के proofs किए थे वैसे ही इसके आएंगे. So first जो इसमें property है that is a property of time shifting. Time shifting मीन्स अगर xt आपका सिग्नल है एंड इट्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म इज x ऑफ s, वी नो दिस थिंग दैट xt का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s, और अगर आप टाइम शिफ्ट कर रहे हो इन द सिग्नल, इफ देयर इज टाइम शिफ्ट इन द सिग्नल, सो हाउ वी विल डिनोट अ टाइम शिफ्ट इन द सिग्नल. अगर ये x है तो टाइम शिफ्ट हम कैसे डिनोट करेंगे सिग्नल में कि मैम x इसको प्लस a या x माइनस a. हाँ यस, इसमें हम एक्स टी माइनस टी नॉट से लिख सकते हैं कि हमने सिग्नल को क्या कर दिया, डिले कर दिया, माइनस टी नॉट. नाउ देयर इज अ शिफ्ट इन द टाइम डोमेन. इफ अ टाइम शिफ्ट इन द सिग्नल will also introduce a frequency shift in the frequency domain. This is your frequency domain. तो इसमें भी आपका शिफ्ट आएगा, और वो कितने का शिफ्ट आएगा, ये x ऑफ s तो एज इट इज रहेगा, ये e रेज टू पावर माइनस एस इंटू टी नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. जितने का शिफ्ट है उतने ही फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर? e रेज टू पावर माइनस एस तो आएगा, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी आपका नेगेटिव ही आएगा. क्लियर है? अगर आप टाइम डोमेन में शिफ्टिंग कर रहे हो, इफ देयर इज अ शिफ्टिंग इन द टाइम डोमेन, और टाइम डोमेन में हमने शिफ्टिंग किस फैक्टर से की, माइनस टी नॉट से, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी में भी शिफ्ट आएगा, एंड जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होगा वो कैसे हम डिनोट करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू टी नॉट. अगर यहाँ टी प्लस टी नॉट होता तो आपका जो शिफ्ट आना था वो ई रेज टू पावर एस इंटू टी नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, अगर यहाँ आपका प्लस टी नॉट है. सो दिस इज द टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लैपलेस ट्रांसफॉर्म. This. Then we have a next property that is shifting in S domain. अगर हम S domain में shifting हो रही है आपकी, means अगर xt है, its Laplace transform is x of s. अगर हम S domain में, this is your S domain, अगर हम इसमें shift कर रहे हैं s माइनस एस नॉट से, तो आपका जो टाइम डोमेन होगा xt वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, ई रेज टू पावर, इसमें माइनस नहीं आएगा, एस नॉट इंटू टी. ये डिफरेंस है. अदरवाइज ये उससे रिलेटेड ये जो हमने पहले किया उसमें हमने क्या किया था कि अगर एक्स टी माइनस टी नॉट है तो उसमें आपका एक्स ऑफ एस किससे मल्टीप्लाई होता है, ई रेज टू पावर माइनस एस इंटू टी नॉट से. जब आपने टाइम डोमेन में शिफ्टिंग की, दिस इज योर टाइम डोमेन, shifting in time domain, but here you have done shifting in frequency domain or S domain. आपने S domain में shifting की तो टाइम डोमेन में किस फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर माइनस से की है तो प्लस से, अगर प्लस से शिफ्टिंग की है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा. दिस इज द डिफरेंस. और वी कैन से कि अगर हम टाइम डोमेन सिग्नल को ई रेज टू पावर एस नॉट इंटू टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी एस डोमेन में क्या आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा. आप इसे दूसरे वे में भी कर सकते हो कि अगर एक्स टी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद एस नॉट टी, इस फैक्टर से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका इसमें एस डोमेन में क्या आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आ जाएगा बाय एस नॉट.
मीन्स अगर आपका टाइम डोमेन सिग्नल किसी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में उतने फैक्टर से ही आपका शिफ्ट आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी जैसे उसमें भी थी टाइम स्केलिंग की। इन टाइम स्केलिंग की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर एक्स टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज एक्स ऑफ एस एंड अगर हम टी को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ दिस टी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ए, दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। दिस इज द एक्सपेंशन इन टाइम डोमेन कि अगर हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, आपका एक्सपेंशन होता है इन टाइम डोमेन। देन वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या आएगा, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड ही है। उसमें क्या होता था, 1/a आ जाता था एंड ये भी आपका a से डिवाइड हो जाता था। प्रॉपर्टी वो याद करो, फोरियर की होती थी x ऑफ a यस t, मैम, थी मैम। इट इज 1/a x ऑफ ओमेगा बाय a। उसमें ओमेगा आता था यहाँ, बट हियर यू हैव s। ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, हमने इसका प्रूफ भी किया था, इस सभी का किया हुआ है, तो सेम है, सेम वैसे ही हमने इसे प्रूफ करना है जैसे उसमें किया था कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका जो आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो 1/मॉडुलस ऑफ a से डिवाइड होगा इनटू x ऑफ s बाय a आ जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन उसमें भी थी आपकी। इन डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इफ xt is equal to x of s, then d by dt of xt, अगर हम टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टाइम डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू x ऑफ s को हम s से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, अगर d बाई डी टी एक्स टी है तो s इंटू एक्स एस। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना, बिकॉज इस प्रॉपर्टी को हम फर्दर आगे यूज करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है कि d बाई डी टी ऑफ एक्स टी, तो हमने उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखना है, दैट इज s इंटू एक्स ऑफ s। सो आई विल आस्क यू दिस प्रॉपर्टी लेटर। सो इट इज d बाई डी टी ऑफ एक्स टी, अगर एक्स टी का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दैट इज x ऑफ s मल्टीप्लाइड बाई s। अगर ये आपको किसी और ऑर्डर की डिफरेंशिएशन है, दिस इज, अगर ये आपको सपोज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इट इज d बाई डी टी एक्स टी था, अगर आपको d स्क्र डी टी बाई एक्स टी है ये चीज, तो उसका अगर हम सिग्नल को डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर तो सिंगल कर रहे थे वो s इंटू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट अगर हम उसे डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपका s स्क्र इंटू एक्स ऑफ s आ जाएगा। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी होता है आपको इक्वेशन गिवन होती है इन दिस फॉर्म कि d बाई डी टी एक्स ऑफ टी प्लस डी स्क्र डी टी स्क्र इंटू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी। ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हम उसमें इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली लिखेंगे, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी डायरेक्टली लिखेंगे। क्लियर है? सो हम ऐसे ऐसे जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर ये डी एन इंटू डी टी एन इंटू एक्स ऑफ टी है तो इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा एस एन एक्स ऑफ एस। कि आपके किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशिएशन हो, अगर सेकंड थी तो डी स्क्र डी टी स्क्र एक्स टी, एस स्क्र एक्स एक्स, अगर थर्ड की हो तो एस क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर होगी ये प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर दैट जो लास्ट प्रॉपर्टी उसमें हमने कॉन्वोल्यूशन की थी इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म, सेम वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन ओवर हियर, दैट इज अगर आपका x1t का कॉन्वोल्यूशन है x1s, x2t का कॉन्वोल्यूशन है, सॉरी, अगर x1t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज x1s, एक और सिग्नल है उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज x2s। हमारे पास दो सिग्नल्स हैं टाइम डोमेन में, x1t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज x1s एंड x2t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज x2s।
देन जो अगर हम इनका कॉन्वोल्यूशन लें सिग्नल्स का, x1t कॉन्वोल्यूशन विद x2t, सेम उसमें भी हमने किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो जो इनके लैपलेस ट्रांसफॉर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता था आपका, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ है। अगर टाइम डोमेन में आपकी कॉन्वोल्यूशन हो रही है टू सिग्नल्स की, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, कन्वोल्यूशन होगी, क्या होगी? मैम उसमें मैम टी माइनस टाउ हो जाता था मैम, और बच्चे एक वो तो दूसरा टाउ होता था। वो तो बेटा कॉन्वोल्यूशन का मेथड था कि हमने कॉन्वोल्यूशन का मैम फॉर्मूला था। मल्टीप्लाई होता है मैम, वो यस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई जाते हैं, होता है मैम। x1 टू 1s इंटू x2s। वो जो आप बता रहे हो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टू फाइंड द कॉन्वोल्यूशन। सो कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है इन लैपलेस ट्रांसफॉर्म? इट इज सेम जो आपकी फोरियर में थी, कि अगर आपके x1t एंड x2t टू सिग्नल्स हैं, और अगर हम उनकी कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, तो एस डोमेन में उनके जो, और वी कैन से कि जो उनके लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसे वैसे ही वही मेथड से हमने डिराइव करना है जैसे हमने फोरियर का किया था, उसी मेथड से ये डिराइव हो जाएगा। वही कि x1 t कन्वोल्यूशन विद x2t, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, वही टाउ वाला जो आप बता रहे हो, तो उसे सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने उसमें प्रूफ किया था, सेम है ये आपका। तो ये तो होगी आपकी प्रॉपर्टीज लैपलेस ट्रांसफॉर्म की। इसमें जो आपकी ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है, इट इज वाइडली यूज्ड, ये बहुत यूज होगी आपकी आगे।